آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے. ہرچے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ اس دنیا میں ہمارے پاس ہے وہ نبی کے بعد ہے. جو بھی رشتہ ناتا ہے، جو بھی تعلق ہے، وہ سب حضور پاک کے بعد ہے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ ایمان کا تقاضا ہے اور ایمان اسی کا نام ہے. عزیزان گرامی وقار، یہ رونا کب تک روتے رہو گے؟ یہ ہماری جائیدادیں لوٹ رہے ہیں، یہ ہمارے وقت کی املاک کو ہڑپ کرنے جا رہے ہیں. دین پر، قرآن پر، اسلام پر، حضور کی ذات پر، ہر چیز پر نشانے اور ہر چیز پر انگلیاں اٹھائی جا رہی. تم کب تک احتجاج کرتے رہو گے؟ کب تک سڑکوں پر آؤ گے؟ کب تک اپنی آوازیں اٹھا کر کے پوچھتے رہو گے؟ کیا تمہارا کام صرف اتنا ہی رہ گیا؟ ایک بات یاد رکھو، جو ڈاکو ہوتا ہے اس کا کام ہی ہے لوٹنا. آج وہ کیا لوٹ رہے ہیں، کس پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تم امت مصطفیٰ ہو، تم کن کاموں میں مصروف ہو یہ دیکھنے کی بات ہے. مجال نہیں ہوتی میرے عزیزوں. مسجد، مدرسہ، مزارات اولیاء، حضور کی ذات، قرآن اور اللہ کی ذات، یہ بہت بلند ہے. صرف تمہاری داڑھی کی طرف بھی انگلی اٹھانے کی کسی کی ہمت نہ ہوتی اگر تم سچے غلام ہوتے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو. پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. میرے عزیزوں، یہاں سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ہماری یہاں پر اتنے لمبے سفر کر کے آنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور میں یہ جانتا ہوں کہ لوگ سننا کم اور دیکھنا زیادہ چاہتے ہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ دنیا اپنے اپنے حساب کے مجرے کرنے والے سیلیبریٹیز کو دیکھتی ہے، تو یہ امت محمدیہ ہے، نبی کے قیدی کو دیکھنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے، جیل سے چھوٹنے کے بعد آدمی چہرہ چھپا کے گھومتا ہے. ہوتا ایسی ہی ہے، جیل کاٹ کے آیا ہے، سزا کاٹ کے آیا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کے تانے مار رہے ہوتے ہیں اور وہ منہ چھپا کر گھوم رہا ہوتا ہے. لیکن یہ قانون ہر جگہ فٹ نہیں ہوتا. وہ اور ہوتے ہیں جو چہرہ چھپا کے گھومتے ہیں، جو نبی کے نام پر جاتے ہیں وہ یہاں بھی چہرہ اٹھا کے جیتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن بھی چہرہ ان کا سرخرو رہے گا. اس لیے کہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے وابستہ ہے. اور اللہ کریم قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کے لیے ہے. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، جن لوگوں کو آج سیلیبریٹی کہا جاتا ہے یا پاورفل شخصیت کہا جاتا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ سے یا پھر گلیمر کی دنیا میں آنے کی وجہ سے، ٹیلی ویژن کے اوپر آنے کی وجہ سے، ان کے حالات ایسے ہیں کہ جب تک جوانی ہے ان کی چاندنی ہے، اور جب تک ان کا شباب ہے وہ چمک رہے ہیں. جہاں چہرے پہ جھریاں پڑ گئی نیا ہیرو آ جائے گا. دنیا ایک نیا ہیرو اپنا ڈھونڈ لیتی ہے، اور یہ دنیاوی حسن و جمال پر اترانے والوں کی زیادہ لائف نہیں ہوتی، وہ برقرار نہیں رہ سکتے. نہ ہی سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر کے اقتدار جمانے والے، ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے، نئی پارٹی آئی اور بوڑھے کو سائیڈ میں لگا دیا گیا. اب بوڑھوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. 40 سال بیچارے خدمت کرتے رہے اور آج ریٹائرمنٹ کی کربناک زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ مصطفیٰ کی غلامی کی دنیا الگ ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ایک عالم دین جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اتنی عزت اس کی بڑھتی چلی جاتی. یہاں بوڑھوں کی عزت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کو بوڑھا کہاں کہتے ہیں؟ جوان بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بوڑھے عالم دین کو فیصل بنا کر بٹھاتے ہیں. جو زیادہ ہے، عمر والا ہو گیا، وہ تجربے والا زیادہ ہو گیا، اس کی عزت بڑھتی چلی گئی. اس لیے کہ یہ عزت
पाउडर लाली की इज्जत नहीं है, ये मेरे मुस्तफा के कदमों से हासिल की हुई इज्जत है। हमने देखा है मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका को, उम्र 75 साल की हो गई, बुढ़ापा था, लेकिन एक जगह उन्हें बिठा दिया जाए और लाखों को एक तरफ, दुनिया लाखों को देखना छोड़ देगी, उस एक मर्द कलंदर पर देखती रह जाए। क्या यह हकीकत नहीं? उनको देखी हुई आंखें मौजूद होंगी। वो हुस्न जमाल नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से हासिल किया हुआ हुस्न जमाल है। इसीलिए मेरे अजीजों याद रखो, इसी बात पर मैं कहता हूं, आबरूए मा जना में मुस्तफा, हम सब की इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। हरचे दरी दुनिया बादे मुस्तफा, जो कुछ इस दुनिया में हमारे पास है वो नबी के बाद है। जो भी रिश्ता नाता है, जो भी ताल्लुक है, वो सब हुजूर पाक के बाद है। नबी से हो जो बेगाना, उसे दिल से जुदा कर दे। पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। ये ईमान का तकाजा है और ईमान इसी का नाम है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी क्या फरमाते हैं? ईमान किसे कहते हैं, उसकी दो चंद मिसालें आपके सामने रखता हूं। और जब ये ईमान आ जाए तो मेरे अजीजों, ये जो आंधियां चल रही, ये जो तूफान आए हुए हैं, ये रुख मोड़ लेंगे। इसलिए कि सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। इकबाल ने कहा था, निकल करके सहरा से जिसने उलट दिया था तख्ते रोमा को, सुना है कुदसियों से मैंने कि वो शेर फिर होशियार होगा। वो मक्का के रहने वाले, मदीना तैयबा की चटाइयों पर बैठने वाले, एक खजूर पर पूरा दिन इक्तिफा करने वाले, पैबंद लगे कपड़े पहनने वाले, वो रसूल पाक के गुलाम, लेकिन निकले थे मक्का से पैबंद लगे कपड़े बगैर चप्पल के। उस वक्त की दो सुपर पावर ताकतों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तख्ते रोमा को उलट दिया था, रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, जिनको कैसर और किसरा कहा जाता है, दोनों को झुकने पर मजबूर कर दिया था। तारीख की ये सच्चाइयां बताती। कौन लोग थे वो? खालिद बिन वलीद, सैफुल्लाह अल मसलूल, 4 लाख सलेबियों के सामने मुकाबले के लिए खड़े थे। तो सलेबियों के बादशाह ने कहा था कि ये अरब के बद्दू, ये अरब के देहाती लोग हमसे लड़ने आए, जो रोमन एम्पायर के फौजी हैं, असलहे से लेस हैं, ताकत से भरपूर हैं। तो खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था जानते हो? आपने कहा था, रोमियो, जिस तरह तुम्हारे फौजी शराब पसंद करते हैं, हम वो फौज लेकर के आए हैं, तुम्हारी शराब से ज्यादा हम शहादत पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो शहादत के लिए जीते हैं। अजीजा ने गिरामे वक़ार, वो ईमान कामिल जब आ जाए तो फिर ये तूफान और ये आंधियां अपना रुख मोड़ लेंगी। आज वजह यही है, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वक़ार में। उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुलामी से जहां कहीं तुम मुंह फेरोगे, थोड़ा सा भी हटोगे, इज्जत निकाल ली जाएगी, इज्जत खत्म कर दी जाएगी। तुम्हें जो मर्तबा मिला है वो खैर उम्मत होने का, वो हुजूर की गुलामी की वजह से मिला है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर हुकूमत करते थे। तब आपने ये नहीं कहा खत्ताब का बेटा उमर इतने बड़े खित्ते पर निगरान हुकूमत कर रहा है, बल्कि आपने कहा था हमें आज जो इज्जत मिली है वो हुजूर की गुलामी की वजह से मिली। वो फख्र ये करते थे। खालिद बिन वलीद 125 जंगों में गए, हर जगह फतह याबी, हर जगह फतह। कभी खालिद बिन वलीद ने ये नहीं कहा मेरे बाजुओं में वो ताकत है कि मैं हर पहलवान को ज़ेर कर देता हूं, जिस जंग में जाता हूं फतेह के झंडे गाड़ देता हूं। नहीं, खालिद बिन वलीद का ईमान तो ये था कि उनके सर पर एक टोपी थी जिसमें हुजूर के 3 मोए मुबारक थे। वो फतेह का सहरा उन्हीं मोए मुबारक को देते और कहते ये निस्बत मेरे साथ है, इसलिए अल्लाह मुझे हर जगह फतह अता करता है। उन्हें जो इज्जतें मिली थी दुनिया में, जो इख्तिदार मिला था, वो हुजूर की गुलामी की बुनियाद पर। और आज हमारे पास जो इज्जत है वो हुजूर की गुलामी की वजह से। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात करते रहो। एक जुमला मैं अक्सर कहा करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। देखना आप, जो इस मजहब में इस तरीके पर जितना बढ़ता जाता है, अल्लाह उसकी इज्जत में इजाफा करता है।
तुम अगर 70 दरवाजों में बंद होकर के भी बैठे रहो, अल्लाह तुम्हारी मोहब्बत खल्क की दिलों के अंदर डालता है। हमने ऐसे ऐसे इलाकों का सफर किया जिसका नाम मैंने जिंदगी में कभी सुना ही नहीं। गांव है, देहात है। राजस्थान के इलाके से कुछ हजरात आए थे, निहायत गरीब इलाके के लोग, और मुझसे बाद रमजान आकर एक मुफ्ती साहब थे, उसके नुमाइंदे थे। उन्होंने कहा हमारे काफिले में या जिस जगह से मैं नुमाइंदा बनकर के आया हूं वहां के लोगों में गरीब लोग हैं। 3-3 महीने तक उन्होंने सिर्फ आपके लिए रोजे रखे, मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए, कि आप जब अंदर थे इन रोजों के जरिए से अल्लाह तबारक तआला रहम फरमाए। ये बातें मैंने एक जगह से नहीं, दुनिया के कितने खित्तों से सुना। हर जगह से लोग ये जो दुआओं का सिलसिला रखे हुए थे, किसने इनको दुआओं के लिए आमादा किया था? कौन है? ये सारी खिलकत मुझे पहचानने वाली कैसे बन गई? इनके दिलों के अंदर कौन डाला कि 8 महीने दरवाजों के अंदर ऐसा बंद था कि मेरे बच्चे मुझे नहीं देख सकते थे, मेरे भाई बहन मुझे देख नहीं सकते, मुझे मुलाकात करने की भी इजाजत नहीं दी जाती। जब इतने दरवाजों के अंदर बंद रखा गया था जहां चिड़िया भी ना उड़े, लेकिन मैंने ये महसूस किया लाखों दिलों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत डाल रखी थी। उसकी वजह यह है, चोरी करके गया होता, लूट मार करके गया होता तो लोग यही कहते कि कचरा था चला गया। हुजूर पाक की बात करके जाए तो मरने के बाद भी अल्लाह उसको दिलों के अंदर जिंदा रखता। ये तो कैद खाने के अंदर गया जहां से आने की उम्मीद होती है, कब्र के अंदर भी जाए तो अल्लाह ताला उसका नाम जिंदा रखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, एक नुक्ते को समझ जाओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी गुलामी यह असल ईमान है। और ये ईमान जिस वक्त आ जाए बड़े बड़े तूफानों का वो मुकाबला कर सकता है। आज पूरी दुनिया के मुशाहिदे से ये पता चलता है, हंगामे इतने हो चुके, इतने खतरनाक तरीके से उम्मत को लर्जा दिया गया है, लेकिन इस उम्मत का हाल ये है कि ये ख्वाबे गिरा में है, ये एक लंबी नींद में है। हमारे नौजवान, वो बच्चे जिनको मैं आज भी नशे के अड्डों पर देखता हूं तो दिल रोता है। जेल के कैदियों में अक्सर वो लोग थे जो नशा करते थे या बेचते थे, पकड़े गए और अंदर आए। नाम कितने अच्छे हैं तुम्हारे और काम किस तरह के हैं। कई लोगों ने तौबा किया, लेकिन वो एक जेल की बात नहीं, यहां तकरीबन 10 जेलों में यही हाल है। ऐ नौजवानों, याद रखो एक बात, अगर हुजूर से मोहब्बत करते हो तो हर जुमेरात को तुम्हारे आमाल फरिश्ते हुजूर की बारगाह में ले जाते हैं। हर जुमेरात को फरिश्ते तुम्हारे नाम के साथ हुजूर की बारगाह में पेश करते, फलां बिन फलां ने हफ्ते भर ये काम किए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं अपने हर उम्मती को उसके बाप के नाम से पहचानता हूं, हर उम्मती को पहचानता हूं। जब उसके बुरे अमाल मुझ तक पहुंचाए जाते हैं तो मुझे गम होता है, मैं इस्तिग़फ़ार करता हूं अल्लाह की बारगाह में, और जब अच्छे अमाल पेश किए जाते हैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र बजा लाता हूं। थोड़ा अपनी जिंदगी के ऊपर नजर डालकर देखो, कितने हफ्ते ऐसे गुजर गए होंगे कि जब हमारे बुरे अमाल हुजूर की बारगाह में पेश किए जा रहे हैं। क्या ये अब भी बदलने का वक्त नहीं है नौजवानों? दुनिया ये चाहती है कि तुम नशे के अड्डों में खोए रहो। कुछ इलाकों में ऐसे भी मैंने देखे हैं जहां बड़े बड़े लोगों का उन्हें सपोर्ट है कि करो तुम नशा, बेचो तुम नशा, तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाए, तुम्हारा इलाका बर्बाद हो जाए। आज से सिर्फ 70 साल पहले की बात है, हमारे इस मुल्क में एजुकेशन लेवल उस वक्त भी मुसलमानों का सबसे ऊपर था, और आज आप बखूबी देख सकते हैं किस तरह से हमें पुकारा जाता है।